تو پاکستان میں جب سیاسی بالکل جلسے ہوتے ہیں اس میں بنسبت اس بات کے یا اس پوائنٹ کے یا اس نیریٹو کے جو اسٹیج سے بیان کیا جا رہا ہے کب سے تعداد زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے، کیونکہ ریسنٹلی بھی ہم جو جلسے دیکھ رہے ہیں ان میں بھی ہم تعداد کو زیادہ فوکس کرتے ہیں بنسبت اس پوائنٹ کے جو اسٹیج سے بیان کیا جاتا ہے۔ obviously آپ کی بات ٹھیک ہے، چیز مانا وہ دیکھا جاتا ہے کہ اسٹرینتھ کتنی ہے، اپنا اگر مدعا بیان کرنا ہے یا اپنے تھاٹ، اپنے خیالات یا اپنی تنقید کرنی ہے گورنمنٹ کی یا تنقید کرنی ہے کہ یہ خامیاں ہیں، آج کے سوشل میڈیا میں اب دیکھیں ہر جگہ کیا جا سکتا ہے، کوئی کسی لیڈر نے بولنا ہو، اسپیچ دینا ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے، ذرائع ابلاغ اتنے ترقی یافتہ ہو چکے ہیں کہ یہ چیزیں پہنچ جائیں گی، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں ناپا جاتا ہے۔ جلسے کا مدعا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پتہ چلے کہ بھئی کتنے پانی میں، دیکھیں میں اور آپ ہم اگر بڑا جلسہ کرنا چاہیں تو ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوگا، جو عوام کے پاپولر قیادت ہے اب اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کتنے لوگوں کو لے کے آتے ہیں۔ ویسٹ میں اس طرح نہیں ہے، کئی ملکوں میں، ہمارے ہاں زیادہ ہے، ساؤتھ ایشیا میں، یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کتنی فالوئنگ ہے، کتنے لوگ ہیں، کتنے عوام ہے، کتنی طاقت ہے، تو اس لحاظ سے جلسے کی بھرکیف پرکھ کی جاتی ہے کہ اگر وہ حاضری کم ہے تو اس کا مطلب ہے، دیکھیں کوئی کمزور پارٹی ہے جو پاپولر نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس طرح اس کی گیدرنگ نہیں ہوگی، لیکن ہم اندازہ بھی لگاتے ہیں کہ فلاں کے جنازے میں کتنے لوگ آئے، فلاں کے جلسے میں کتنے لوگ آئے، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شخص یا وہ نظریہ یا وہ سوچ کتنی پاپولر ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، اس لیڈرشپ کی بھی اور پھر اس سوچ کی، اس خیال کی بھی۔ فار ایگزامپل لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں تو مہنگائی کے خلاف وہ نکلے ہیں کہ نہیں نکلے ہیں، تو یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کے لیے بھی اور اپوزیشن دونوں کے لیے یہ پرکھ ہوتی ہے، بال اس میں ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ سر جلسوں کے حوالے سے ہی سوال ہے سر، آپ نے کہا کہ جو کراؤڈ آتا ہے اس سے پرکھ ہوتی ہے حکومت اور اپوزیشن کی سر، لیکن پی ڈی ایم کے آپ نے جلسے دیکھے ہوں گے، 13 تاریخ کے جلسے کے بعد، لاہور والے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ وہ لانگ مارچ کریں گے، تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو پی ڈی ایم ہتھ کنڈے کر رہی ہے سر، یہ اپنی سیاست بچانے کے لیے کر رہی ہے؟ ان کو ڈر ہے ان کی سیاست ختم ہو جائے گی، کیونکہ لانگ مارچ کر کے بھی آپ حکومت نہیں گرا پائیں گے۔ آپ کہہ سکتے ہیں اعتراض کرنا ہو تو بالکل اس میں نکلتا ہے کہ وہ اپنے ان کے مقاصد ہیں، مفادات ہیں، یا جس طرح کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، نکلے این ہیں۔ آر او کے لیے کر رہے ہیں سر بیسیکلی، سوری آپ کی بات کٹ رہا ہوں، لیکن این آر نہیں او کے لیے کاٹیں، کر آپ رہے ہیں بات کریں، بیسیکلی۔ ڈیبیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات اٹھائیں۔ لیکن سر این آر او تو نہیں نہ ملے گا ان کو، عمران خان صاحب نے کل بھی کہہ دیا کہ این آر او نہیں دوں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ سر پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ لانگ مارچ کرے اور حکومت گرا دے کوئی بھی، اگر ایسا ہو گیا تو پھر کل اور کوئی 40-50 ہزار بندے لے کے آ جائے گا، پھر وہ بھی حکومت گرائے گا، یہ ٹرینڈ اچھا نہیں ہوگا۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اس سے حکومت گرنے کا چانسز کم ہیں، کوئی ایسی ایگزامپل آپ کو کم ہی ملیں گی کہ اس طرح نکلنے سے حکومتیں گر جائیں۔ اور این آر او کا جہاں تک ہے، اگر گورنمنٹ اپنے جو بھی ان کا ارادے ہیں یا جو بھی ان کے مقاصد یا جو بھی جس طرح بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں دینا، تو ظاہر ہے کہ اس طرح تو نہیں ہوگا، لیکن آپ دوسرا پہلو ذرا سامنے رکھیں، وہ یہ ہے اس ملک میں باہر کیف آپ کو بھی اندازہ ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ اتنے صاف شفاف، پہلے ہی مثالیں کم ہیں ہونے کی، اور جو یہ 18 کا الیکشن ہوا تھا اس پہ 101 انگلیاں اٹھانے کے مواقع ہیں، گنجائش ہے، الیکشن میں ریگنگ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اس پہ اچھی خاصی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اور ان لوگوں کا موقف آپ کو وزنی لگے گا کہ ریگنگ ہوئی تھی۔ جو ماحول بنا ہوا تھا، طاقتور لوگ جو اثر رسوخ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ کیا اپوزیشن گھروں میں بیٹھی رہے کہ ٹھیک ہے جی ہوئی تھی، تو ہم چونکہ کمزور ہیں، ہمارے اٹھنے سے گورنمنٹ تو گرنی نہیں، لہٰذا ہم آرام سے مولانا صاحب جو جمعے کے خطبے دیں اور باقی صاحبان جو ہے گھر میں بیٹھ کے تو اپنی تصویر بہائیں۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ احتجاج زندگی کی علامت ہے، زندہ لوگ ہی احتجاج کرتے ہیں، مردہ لوگ جو ہیں وہ پھٹے پہ ڈال دو یا ان کو چارپی پہ ڈال دو، انہوں تو نہیں بیچارے بول سکتے۔ جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت یہی ہے کہ آپ اپنے ویوز کے لیے، اپنے تھاٹ کے لیے آپ نکلیں، بولیں، اپنی آواز اٹھائیں، تو یہ ایک طرح کی احتجاجی طاقت، اور اس پہ آپ یہ کہیں کہ اس کا حکومت کا کچھ نہیں بگڑنا، میں یہ بھی آپ سے اتفاق نہیں کروں گا، اس واسطے کہ بھلے وہ نہ گرے، لیکن سچائی یہ ہے حکومتیں اس میں نکارہ ہو کے رہ جاتی ہیں۔ اگر وہ احتجاجی تحریک بڑھ جائے گی تو کچھ لوگ نکل پڑیں گے۔ آپ بھی دیکھیں ابھی تک جس طرح جب سے یہ جلسے شروع ہوئے ہیں، وہ دعوے کر رہے تھے بلند بانگ، وہ سارے پیچھے چلے گئے ہیں۔ ہر وقت یہ کوسنا ہوتا ہے اپوزیشن کو، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، تو اس کے اثرات تو ہوں گے، اور اس میں سب سے بڑا اپوزیشن سے بڑھ کے گورنمنٹ کا نقصان ہوگا اور ہو رہا ہے کہ وہ اپنا ایجنڈا پورا نہیں کر سکے گی۔ جب وہ ایجنڈا پورا نہیں کر سکے گی، ان کو روکنے کے تدابیر سوچتی رہے گی، تو کل کو انہوں نے بھی عوام کے سامنے پیش ہونا ہے یا نہیں ہونا، وہاں ان کے پاس کیا ہوگا دکھانے کے لیے عوام کو؟ کارکردگی اگر آپ کی زیرو رہ گئی، یہ ہوا کہ جی ہم تو جلد سے ہی بس روکتے رہے ہیں، اس میں کامیابی کس کی ہوئی اور ناکامی کس کی ہوئی؟ سر جمہوری ملک ہے، ڈیموکریٹک کنٹری ہے سر، احتجاج اپوزیشن کا حق ہے،
सर आपने एक बात की कि घर बैठ के नहीं देख सकते अपोजिशन वाले। हुकूमत का नुकसान भी हो रहा है जलसों से, ठीक है, उन पे प्रेशर भी आ रहा है, अपना एजेंडा वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे। लेकिन सर मौलाना फजलुर रहमान जो पीडीएम के सर यहाँ पर लीडर हैं, या ये जो सर ये सदर बनने के लिए इसी असेंबली के उम्मीदवार थे, उनका बेटा अभी भी असेंबली का मेंबर है। तो सर ये इनको उस वक्त नहीं ख्याल आया जब ये असेंबलियां बन रही थी, अगर इलेक्शन में धांधली हुई है तो उसी वक्त एहतियाज हो सकता था, फिर इतने अरसे बाद क्यों याद आया? क्या उस वक्त ये मान चुके थे हुकूमत को, या कोई मुकमुका हो चुका था इनका किसी के साथ? सबसे पहले आप अगर 13 के इलेक्शन में चले जाएं तो आपको नजर आएगा कि जो हारने वाले थे उन्होंने मुबारकबाद भी दे दी थी जीतने वालों को, तस्लीम भी रिजल्ट कर लिए थे। एक साल के बाद उनको याद आया कि या किसी ने कहा कि भाई आप उठें, ऐसे करें वैसे करें, तो बिल्कुल आपको ये सब नजर आएगा कि फिर उसके बाद उनको बेचैनी शुरू होगी और वो धांधली उनको याद आती चली गई। जबकि उसके बरअक्स कम से कम मौलाना फजलुर रहमान के मुतालिक हम और आप ये बात नहीं कह सकते। वो बहुत शख्स हैं जिसने इलेक्शन के रिजल्ट आते ही फौरी बात सबसे पहले ही कहा था ये धांधली की शुदा इलेक्शन है, हम इनको तस्लीम नहीं करते। हालांकि उस वक्त जो दोनों बड़ी सियासी पार्टियां थी वो उस हक में नहीं थी एहतजाज के, लेकिन मौलाना खुले बैठे थे। उसी वक्त वो चाहते थे, जिस तरह 77 में हुआ था, मार्च में जब वो इलेक्शन हुए उसी वक्त अपोजिशन ने उनको रिजेक्ट कर दिया था और एजिटेशन शुरू हो गया था। मौलाना साहब भी यही चाहते थे कि उसी वक्त हम एजिटेशन शुरू कर दें। उन्होंने कभी भी तस्लीम नहीं किया। रह गया ये कि उन्होंने कैंडिडेट हुए या उनका बेटा है, जाहिर है ये तो पॉलिटिकल प्रैक्टिस है, ये होती हैं चीजें। बहुत सारी चीजें हम नहीं मानते लेकिन हमें करनी पड़ती हैं। अब बहुत से लोग हैं जो कहते हैं, जो हमारे इस वक्त बैठे हुए ये जेन्युइन वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, बल्कि आपको पता ही है सिलेक्टेड की टर्म भी उनके लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। इसके बावजूद ये मानना तो पड़ेगा कि वज़ीर-ए-आज़म वही हैं और वही बैठे हुए हैं, जैसे तैसे भी हैं। लिहाजा ये कहना कि मौलाना साहब ने पहले उस तरह नफी नहीं की है, तो ये मेरा ख्याल दुरुस्त नहीं है। नफी तो वो पहले से कर रहे हैं, बाकी प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, रियलिटीज होती हैं जिनको लेकर चलना होता है। सर मेरे कहने का मतलब है नफी तो उन्होंने की थी बिल्कुल, वो तो पहले ही कह रहे थे, जब नतीजे भी नहीं पूरे आए थे वो कह रहे थे कि धांधली शुदा इलेक्शन है। लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ कि फिर उसी असेंबली में आप सदर बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्यों सर खड़े हुए? प्रैक्टिकल कई चीजें रियलिटीज होती हैं, जैसे डी फैक्टो और डी ज्यूरो की बहस है। तो डी फैक्टो तो वो हैं और बैठे हुए हैं, तो उसमें जब एक चीज फैक्ट के तौर पे है तो आप उसका हिस्सा भी हैं। या तो वो उनका बेटा है वो मेंबर है, उनके और भी लोग हैं जो मेंबर हैं, और पूरा पीटीएम की जो पार्टियां हैं उनकी अच्छी खासी उनके पास सीटें हैं। ये कि रियलिटी के तौर पे देखें तो वो जब चीज मौजूद है तो उसमें आप चल भी रहे हैं, डिबेट भी हो रही है, बजट भी चल रहे हैं। डी ज्यूरो वाली बात के उसमें वो समझते हैं कि ये बोनाफाइड नहीं है। सर मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि सर ठीक है, ये जो है 13 वाली आप कह रहे हैं कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है, जैसे उस वक्त तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी, पहले वो अपोजिशन में रहे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं हम इस हुकूमत को नहीं मानते, वही चीज रिपीट हो रही है। सर एक और बात चल रही है अभी पीडीएम की तरफ से, पहले इन्होंने कहा कि हम अपने इस्तीफे जमा करवाएंगे, इस्तीफे, फिर उन्होंने कहा कि हम पार्टी की क्यादत को जमा करवाएंगे। तो सर आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ये इस्तीफे जमा करवाते तो हुकूमत बायो इलेक्शन करवा देगी, ज़िमनी इंतखाबात करवा देगी, तो शायद कुछ सीटें हुकूमत को और मिल जाएं, तो बायो इलेक्शन करवाने के बाद हुकूमत की पोजीशन मुस्तकम नहीं हो जाएगी? इतना आसान नहीं है ये सारा प्रोसेस। वो कहने को ठीक है बात आपकी कि उनकी सीटें बढ़ने का भी इम्कान, क्योंकि जाहिर है जब ये रिजाइन कर देंगे तो उन सीटों पे कंपटीशन मुकाबला होगा, तो ये कहा जा सकता है कि वो उनकी कई सीटें बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि वो सिटिंग गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं उसमें सिटिंग गवर्नमेंट का एज होता है कि उससे अब जीबी के इंतखाबात देख लें, कश्मीर के इंतखाबात देख लें। ये ठीक बात है, लेकिन आप एक पहलू ना देखें, दूसरा पहलू भी काइंडली देखें। जब इतने ज्यादा इस्तीफे आते हैं, पीटीआई ने जब अपने इस्तीफे पेश किए थे वो बहुत ज्यादा नहीं थे, गादबन वो 35 या इसके लगभग थे। उसके बावजूद वो गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी इस मसले में पड़े, इसमें ज़िमनी इलेक्शन और इंतशार और जाहिर है ये जो सारा प्रोसेस होगा गवर्नमेंट के लिए उलझने पैदा नहीं होंगी क्या? उसमें वो अपना असल काम छोड़ के ये गवर्नमेंट जिस तेजी से अनपॉपुलर हुई है आपके भी सामने है। आप मैं बिल्कुल तअस्सुब पार्टी किसी की रूह रिवायत के साथ नहीं चल रहा हूँ, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, दोस्त हैं बहुत से लड़ने को आते तो हीरोशिप का जो एजाज जो उनको बैकग्राउंड है उसमें देखते थे ऐसी महान हस्ती हैं, तो बात नहीं जिसके खिलाफ की जा सकती, तनकीद नहीं की जा सकती, ये सब कुछ था। वो चीज में कमी आई या नहीं आई? यहाँ गली मोहल्ले में किसी जगह उसकी फेवर में बोलना मुश्किल हो चुका है। एक बंदा हमारे में बोलता है, 10 खड़े होकर लड़ने को आते हैं कि यार और क्या, बेरोजगारी खीर हो गई है, छांटी साफियों की हो रही है, हर शोबे में हो रही है, लोग निकल रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है। तो ये सब चीजें जब मिलती जाएंगी तो मुझे बताएं, एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट जो है उसके लिए ज़िमनी इलेक्शन इतना आसान नहीं रह जाता मेरी जान, उसमें मुश्किलें पेश आएंगी। ये सारे चीजें मसमसे ऐसे पैदा होंगे, उसमें गवर्नमेंट कम से कम अपना एजेंडा नहीं कर सकेगी, उनको यू टर्न भी लेने पड़ेंगे चीजें, यानी वो आगे अवाम को दिखाने के लिए। पहले भी अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं सामने आई, तो आप सोचें कि जब हालात ऐसे खराब हो जाएंगे तो उसमें
किस तरह वो अपनी बेहतर कौमी तामीर की भी चीजें मंसूबे वो ला सकेंगे? सर बेसिकली किसी भी फोरम पे जब पाकिस्तान और जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, इसके दरमियान जो तनाज़ा है उससे मुताल्लिक कभी भी कोई क्वेश्चन उठाया जाए तो फौरन से जो बेसिक तनाज़ा है वो इसी चीज को करार दिया जाता है कि कश्मीर है, जबकि इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे हैं जो कि खुद मुख्तार कश्मीर के हामी हैं और उनका कहना, जिन्हें हम कहते हैं कि ये अलहदगी पसंद, हम उन्हें करार देते हैं। उनके नजदीक कुछ और अनासर भी हैं जो कि इसका पाकिस्तान और भारत के माबैन तनाज़े की बड़ी वजह है। आपके नजदीक कश्मीर के अलावा पाकिस्तान और भारत के दरमियान बेसिक तनाज़ा क्या है? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तनाज़े को ऐसा देखते ही नहीं हूँ। अपने अपने इंटरेस्ट की बातें हैं, क्योंकि उसकी एक बैकग्राउंड है। जब ये पार्टीशन हुई है वो खुश असलूबी से तो हुई नहीं थी, एक नफरत की बुनियाद पे हुई थी। हमने कहा कि हिंदू जो हैं वो ऐसे इस्तेहसाल करेंगे, जमहूरियत आएगी, वो उनकी मेजॉरिटी है तो वो उनकी एक परमानेंट हमारे ऊपर डोमिनेट हो जाएंगे। तो ये एक खौफ था। और दूसरी कई वजूह हैं कि उस वक्त बिजनेस में भी वो काफी हावी थे। लाहौर जैसे शहर में अब देखें अनारकली की मार्केट सबसे बड़ी थी, मुसलमानों की शायद एक दुकान थी, सारी की सारी बाकी हिंदुओं की थी। तो प्रॉपर्टी के लिहाज से, हालांकि मेजॉरिटी के लिहाज से मुसलमान ज्यादा थे, लेकिन प्रॉपर्टी और कारोबार और बिजनेस और इस लिहाज से हिंदू ज्यादा यहाँ डोमिनेट कर रहे थे। ये नफरत जो है जो चली है वो आज भी रुकी नहीं है। कश्मीर का इशू अगर सॉल्व भी कर लिया जाए तो नफरत के जो सौदागर हैं उन्होंने फिर भी बात नहीं आना। वो कश्मीर मिटेगा तो कुछ और मसला आ जाएगा, कोई और 2-3 मसाइल, 3, 4, 5 से 7, 8 मैं अभी आपको सुना दूंगा कि ये मसाइल पैदा सर उठाएंगे और कहा जाएगा ये तो। अगर हमने नफरत की बुनियाद पे चलते रहना है तो ये इंशाल्लाह कहीं खत्म होती मुझे नहीं दिखती है। लेकिन अगर हम रियलिटी पे आ जाएं और हम ये कहें कि इस खित्ते की तरक्की अगर करनी है, और एक दफा हमारे आर्मी चीफ ने भी ये कहा था पिछले थोड़ा सा पहले कि आज मुल्कों की तरक्की नहीं होती बल्कि खित्तों की तरक्की होती है। अब देखें जिन खित्तों में इस्तेहकाम आया है वो खित्ते ऊपर उठे हैं, उनकी मईशत ऊपर उठी है। जहां जहां आपसी सर टटोल है वहां नहीं उठ पाएंगे। हम दूसरों को भी तरक्की रोकेंगे, अपनी भी रोकेंगे। कश्मीर के इशू का सोल्यूशन क्या है, अगर आप इस पे आएंगे तो मैं इस पे जरूर आपको अपना व्यू पॉइंट देने को तैयार हूँ। कश्मीर को लगाया हुआ हमने नफरत फैलाने के लिए, हालांकि ये चीज ऐसी नहीं है कि जिस पे नफरत रखी जाए। यहाँ के हर मसले का हल है, कश्मीर का भी हल है। सर मैं कहना चाहती हूँ कि अभी जो है अभी इंडिया के हालात भी जैसे चल रहे हैं, तो पाकिस्तान जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को क्यों नहीं लेता? ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि कश्मीर को लिबरेट किया जाए इस टाइम पे। टेबल टॉक्स वगैरह जो है वो कितने सालों से चल रही हैं और अभी तक कुछ भी नहीं बन सका, और यूएन ने भी हैंड्स अप कर दिया। और ये जो बात चल रही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कश्मीर का इशू रख रहे हैं, तो इससे कुछ भी नहीं बन रहा। और एक ही सॉल्यूशन है कि लिबरेट किया जाए कश्मीर को। टाइम सेंसिटिव इशू है, तो अभी तक क्यों नहीं लिबरेट क्यों नहीं किया जा रहा अभी? आपके सवाल को अप्रिशिएट करता हूँ और मैं खुद भी जाती तौर पर पूछे इसी सोच का हामिल हूँ, लेकिन कई चीजें प्रैक्टिकली देखनी पड़ती हैं। पहली बात तो यह है कि जो हमने ये रेजोल्यूशन की बात डाली हुई है कि यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक इसको हल किया जाए, ये अब पुरानी हो चुकी है। अगर आपकी नजर है, आप करंट अफेयर को, इंटरनेशनल सिचुएशन को सारी को समझते हैं, तो आप पे भी ये वाज़ेह होगा कि ये अब नहीं हो सकता। वो जमाना लग गया, वक्त बड़ी तेजी से बदल चुका है। अगर आपने इसको यहीं पे रखना है एक दलदल में या उलझा के लगे रहें, वो भी लगे रहेंगे, बात ऐसे यहीं अटकी रहेगी और इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ना यूएन ने आना, ना कुछ और कुछ होना है। अगला क्वेश्चन कि क्या इंडिपेंडेंट कश्मीर होना चाहिए, कि ना 1 इंच पाकिस्तान ने छोड़ना है और ना 1 इंच कश्मीर को इंडिया ने छोड़ना है। ये एक फैक्ट है। जो यूएन की रेजोल्यूशन थी उसमें भी ये लिखा हुआ था कि दोनों तरफैन की जो फोर्सेज हैं वो निकल जाएं, या अगर फोर्सेज नहीं निकली हैं, कि हमारी निकली हैं, कहीं भी नहीं निकली, ना निकलेंगी। अपना इलाका कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं होगा। कश्मीरियों की आज भी अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी मेरा ख्याल यही चाहेगी कि भाई हमारी जान छोड़ो, ना हम इंडिया के हैं, ना गुलाम है, ना हम पाकिस्तान के गुलाम है, हमें जीने दो, हम इंडिपेंडेंट कश्मीर कश्मीरियों का होना चाहिए। इस बात में बड़ा वजन है, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज नहीं चल पाएगी। कि उसका एक हल ये है जो दोनों कबूल भी कर सकते हैं और कश्मीरियों को भी जिस तरफ सोचना चाहिए, और फ्यूचर में इसका इम्कान भी हो सकता है कि जो उनके ज़रिए कंट्रोल है वो उनके पास रहे, जो हमारे ज़रिए कंट्रोल है वो खित्ते हैं वो हमारे पास रहे। इनके आपसी असेंबलियां भी बने, लेकिन एक इनकी जॉइंट असेंबली भी बनाई जा सकती है, और इनका जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको बिलफेल ऐसे किया जा सकता है जिसमें कोई वीजा वगैरह ना हो, आपस में कश्मीरी आए, खुशियों गमियों में शरीक हों, यहाँ के माल वहां जाए, उधर के ट्रक इधर आए। ये सारा सिलसिला शुरू हो सकता है। रिश्तेदारियां उनकी आपस में, फैमिलियां बटी हुई हैं, ये सब चीजें हो सकती हैं। यूरोपियन यूनियन को देख लें, वहां भी ना जाएं। मैं खुद गया, उधर नेपाल जाने का मौका मिला, वहां लोगों से डिस्कशन हुई, कईयों की दुकानें नेपाल में हैं और रहते वो इंडिया में हैं, कोई वीजा नहीं है।
अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं, उधर से इधर जाते हैं। इस तरह की चीजें अगर 2 मुल्कों में हो सकती हैं तो इस खित्ते में क्यों नहीं हो सकती हैं? इस खित्ते के लोगों को, कश्मीरियों को बजाय 2 टुकड़े करने के उनको मिलने दें, उनको बिजनेस उनका बढ़े, वो आए जाएं। पॉलिटिकली भी जॉइंट, जैसे मैं कह रहा हूँ, अदारा बनाया जा सकता है, इस पे गौर किया जाए। ये दोनों मुल्क अगर बैठ के इस मसले को इस अंदाज से निपटाना चाहें तो ये तो बहुत आइडियल है। अदरवाइज बाकी हाल यही दिखता है कि जो उनका है वो उनके पास रहेगा, जो हमारा है वो हमारे पास रहेगा, और ये बाकी बहानेबाजियां हैं, कौम को उलझाने वाली बातें हैं। समझ दो, ताकत से कोई भी कश्मीर छीन नहीं सकता दूसरे से उसका। आजकल पाकिस्तान पे सऊदी अरब की तरफ से काफी प्रेशर डाला जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। उनकी मीटिंग भी हुई, उसके अलावा उन्होंने $1 अरब जो थे वो पहले मांगे भी वापस, और अभी एक और जो कि पाकिस्तान ने चीन से लिए और 1 हफ्ते तक हमने सऊदी अरब को वापस देने हैं। ये अरब की तरफ से प्रेशर है पाकिस्तान पे कि हम इसराइल को कबूल करें। मुझे ये समझ नहीं आती सर कि एक इशू जो कि अरब का और इसराइल का, या आप कह लें कि अरब के मुसलमानों का और यहूदियों का है, उसको हम बनाते हैं कि ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक तनाज़ा है यहूदियों के साथ। हालांकि अज़रबैजान का और उनका जो अपना इशू है अपने हमसाया मुल्क आर्मीनिया के साथ, आर्मीनिया दुनिया का पहला ईसाई मुल्क भी था, उसके हवाले से हमारी आवाम के अंदर इतना ज्यादा नहीं कि ये भी कोई मजहबी मामला है जो कि ईसाइयों के बीच में और मुसलमानों के बीच में है। तो इसराइल को जो ये एक मजहबी लबादा दिया गया है, इसमें कौन से अवामिल हैं जिनको लेके पाकिस्तान की आवाम आज तक नहीं समझ रहे, और हमारे लीडर्स कभी ये कोशिश नहीं करते, हिम्मत नहीं पड़ती कि हम आवाम को समझा सकें कि कोई ये सियासी मसला है, कोई मजहबी मसला नहीं है। कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिलेशन में जो इस वक्त आपको सर्द मोरी या एक फासला फील हो रहा है, वो महज इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए जो प्रेशर, वो वजह है। पब्लिकली जो चीज सामने आई थी, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जो मीडिया के सामने तनकीद की, और वो नहीं करनी चाहिए थी। एक तरफ हम ब्रदर और भाई और क्या कुछ बोलें, और एक उसकी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। जब भी पाकिस्तान को मुश्किल पेश आई, हम सब के सामने है कि हम सऊदियों की तरफ गए, और सऊदियों ने हमें ना सिर्फ तेल हमें गिफ्ट भी किया, पैसा भी दिया। हर मौके पे आप छानबीन करें तो आपको बहुत मौके नजर आएंगे कि सऊदियों ने हमारी कितनी कितनी किन किन मराल पे हेल्प की हुई है। अब मसला यहाँ आगे अटक गया। हम कहते थे कि कश्मीर में वो हमारे साथ खड़ा हो सऊदी अरब, जबकि सऊदी ऐसा नहीं समझ। हमारे लिए इंडिया से जितनी भी नफरत है, हमारे अरब ब्रादर्स में वो नफरत नहीं है इंडिया के बारे में। वो समझते हैं वहाँ पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान बसते हैं। यहाँ तक एक मौके के आए कि उसको भी OIC में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि देखें उनके प्रेसिडेंट भी कई मुसलमान हुए, उनके वज़रा मुसलमान होते हैं, उनके अंदर नहीं जिसको हम कह सकें कि वो जी बीजेपी पे तनकीद कर लें जो आजकल हुआ है, लेकिन मजमूई तौर पे इंडिया की जो पोजीशन है वो ऐसी नहीं है जैसी हम पेश करते हैं, पहली बात। और कश्मीर के इशू पे वो पाकिस्तान के मौकफ के उस तरह तायद वो नहीं कर रहे थे, और वो पाकिस्तान ये चाह रहा था कि OIC में बाज़ाब्ता तौर पे इसका सेशन रखा जाए कश्मीर के ऊपर, वो नहीं रखा गया। आगे चल के चलो मौके आ भी जाते हैं। सिर्फ ये कहना कि वो इसराइल को तस्लीम कराना चाहता है, मेरा ख्याल ये दुरुस्त नहीं है। इसराइल एक फैक्ट है, एक हकीकत है। अब हम माने उसको या ना माने, हमने अपने पासपोर्ट पे लिख रखा है कि ये इसराइल के लिए कारआमद नहीं है, लेकिन रियलिटी का ये मुंह चढ़ाने वाली बात है। बहुत सारे मुसलमान अब तो मुल्क का उसके हमसाया जॉर्डन ने उसको तस्लीम कर रखा है। इजिप्ट अरब मालिक के सबसे अहम मुल्क समझा जाता है। ये 79 की बात है, प्रेसिडेंट अनवर सदात वहां गए थे और जो उनके साथ जो वादे हुए, फलस्तीन यासर अरफात की क़यादत में जब अब तो महमूद अब्बास हैं, तो इन्होंने भी उसको तस्लीम किया हुआ है, टर्की ने किया हुआ है, अभी बहरीन ने, अभी सऊदी अरब अमारात ने, सूडान ने, ये इस्लामी मुल्क सारे इन्होंने भी तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान ने इस बारे में जो पॉलिसी अपनाई हुई है अवामी सतह पे भी और सरकारी सतह पे भी, ये एक ऐसी है जो रियलिटी के करीब नहीं है। और यहाँ दूसरे मौकफ को, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सामने आना चाहिए कि इसको मजहबी मसला बनाना और इस तरह मजहब का करके देना बहुत ही पहले और बड़ा भरपूर इस पे लिखा हुआ है, बल्कि ऐसे आर्टिकल भी लिखे हुए हैं कि इसराइल को तस्लीम ना करना अज़रुए कुरान जायज है। काफी पढ़ा तहकीक किया, और जूस के बारे में हमारे यहाँ यकतरफा एक चीज कह दी जाती है, जबकि दूसरे पहलू बहुत सारे हैं। एक वक्त में हमारे प्रॉफिट ने उनको उम्मते वादा कहते हुए ये टर्म इस्तेमाल की थी कि जूस और मुसलमान उम्मते वादा हैं, एक कौम। हमारे यहाँ तस्बात असल में नफरत की हद तक चले जाते हैं, ये चीज गलत है। अगर ये चीज दुरुस्त हो जाए तो हमारी बहुत सी थिंकिंग दुरुस्त हो सकती है। ये बिल्कुल इसराइल के बारे में हमारा मौक़िफ़ बदलना चाहिए और राय अम्मा को हमवार किया जाना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हमारी दुनिया में 57 ममालिक हैं। हालांकि हम एक तरफ ये कहते हैं कि हम एक कौम है और एक ही हमारा हुक्मरान होना चाहिए, फलां होना चाहिए, लेकिन 57 ममालिक हैं। क्या यहूदियों का दुनिया में कोई एक मुल्क भी नहीं होना चाहिए? अब वो जस्टिफाई करना अलहदा बहस है, लेकिन
ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। ये पाकिस्तान की इसके बारे में जो पॉलिसी है रियलिटी पे मबनी नहीं है, बल्कि सिर्फ इमोशनलिज्म पे है। इमोशनलिज्म जो होता है, जो शऊर के बगैर हो, वो कोई अच्छी चीज नहीं होती। जी सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि अभी फ्रांस ने जो पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए, उस पे हमें बहुत गम और गुस्से का इजहार भी हमने किया, और उस पे जाहिर है कि मुसलमान चाहे जितना भी लॉजिकल या मॉडर्न हो जाए, ऐसी बातों पे उससे थोड़ा बहुत दुख होता है। और इसको हम डीपली देखें तो ये दोनों अक़दार की लड़ाई है, जिसमें एक तरफ सिर्फ अकीदत या सिर्फ जज्बात हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ अकल, या आप उसको कह लें कि फ्रीडम है। तो हम हमेशा इस हवाले से बात करते हैं कि हमारे स्कॉलर्स को फ्रांस जाके बात करनी चाहिए, जो कि इंग्लिश पढ़ते समझते हों, और उन लोगों के साथ एक डायलॉग करना चाहिए। लेकिन मुझे कई दफ़ा ये लगता है कि हमें अपने अंदर, अपने पाकिस्तान के अंदर, अपने मुसलमानों के अंदर डायलॉग की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम तो उन्हें समझा ही नहीं पाते कि जंग या एटम बम फेंक देना किसी मसले का हल नहीं, बल्कि हमें उन्हें समझाना होगा कि हम किस तरह की अकीदत रखते हैं और वो किस तरह का फ्रीडम चाहते हैं। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है जी। मैं अर्ज करूँ एक बात, आपने कहा थोड़ा बहुत होता है, नहीं बहुत ज्यादा होता है हमारा, उसमें बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं, थोड़े बहुत नहीं होते। और हमारे यहाँ इस मामले पे लोग लड़ने मरने तक पहुंच जाते हैं। ये बिल्कुल पब्लिक सेंटीमेंट का मुझे एहतराम है, और हर मुसलमान को एहतराम है। हर मुसलमान अपनी बगजीदा हस्तियों का यही एहतराम रखता है, और कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा कि उनके, देखें आप किसी के पीर को बुरा कहें तो वो उसके मुरीदैन बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो दुनिया की ऐसी हस्ती हैं मुसलमान, जिसके लिए बहाल गम गुस्से का इजहार करेंगे और करते रहेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है फौरी कि वो कौमें जिनको हम महजब कौमें कहती हैं, अब फ्रांस ही देख लें, वहां एक जो सफाई करने वाला है उसको भी बदतमीजी से पेश आना या बुरा कहना एक तहजीब के खिलाफ बात समझी जाती है। मामूली से मामूली जिसको हमारे यहाँ घटिया अल्फाज तक बोले जाते हैं, उन कौमों में ऐसा नहीं है। मेहनत कश वहां है, मजदूर है, ताकि जो झाड़ू दे रहा है उसको भी इज्जत के साथ मुखातब किया जाता है और बात की जाती है, और यही उनका कल्चर भी है। हमें सोचना चाहिए कि वजह क्या है कि जब वो इतना ज्यादा एक तरफ ह्यूमैनिटी का जो कद शख्सियात हैं वो तो एक तरफ रही, आम लोगों का भी इतना रिगार्ड है, तो क्या वजह है कि वो हमारे अजीम हस्ती के क्यों कार्टून बनाते हैं? ये वजह क्या है? ये इस मसले को समझना मैं समझता हूँ आज वक्त की असल जरूरत है, जो नहीं हमारे यहाँ। हम अपने लठ लेके पड़ जाते हैं, उन्होंने तौहीन किया, खाके बनाए हैं, और वो कहते हैं देखें जी ये तो बड़े जज्बाती लोग हैं, ये हमारी फ्रीडम बोलने की, लिखने की, मजहबी, सियासी, समाजी जो आजादियां हैं ये तो उनका कला कमा ये लोग कर देना चाहते हैं। दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको समझा जाना चाहिए, ये क्या है और क्यों है। फ्रांस का इनकलाब किस तरह आया था, वो आजादी इजहार के रोस्तों जो भी इसकी बैकग्राउंड है, आजादी इजहार उसमें बुनियादी नुकता था कि हमने कोई तबदाद कबूल नहीं करना, कोई मजहबी जबर हो, सियासी जबर हो, हम उसके खिलाफ बोलेंगे। थॉट जो है सिर्फ फ्रांस तक नहीं महदूद रही है, बल्कि मगरब की तकरीबन तमाम कौमों में ही रासख हो चुकी है। आप अंदाजा करें कि वेस्ट में हालांकि एक तरफ वहां सैयदना मसीह को 3 में से 1 करार दिया जाता है, और उनकी किस हद तक उनकी शख्सियत है, जितना हम मुसलमान तो हम अपने प्रॉफिट को अल्लाह या उनका हिस्सा नहीं करार देते, अल्लाह का बंदा और उनका भेजा हुआ तस्लीम करते हैं, वो अपने को उससे भी भाड़ के कहीं समझते हैं। लेकिन आप सोचें कि क्या वजह है, वहां जीसस क्राइस्ट के कार्टून भी बनते हैं, उनके खिलाफ ऐसी ऐसी मूवीज बनाई हैं, मैं जो यहाँ आपको बयान करूँ तो आप कहेंगे कि ये शायद मुनासिब नहीं है। इतना कुछ लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है उसी समाज में जिसमें उसको बहुत माना भी जा रहा है। उनके समाज की वैल्यूज क्या हैं, क्या वो किन चीजों को क्या प्रायोरिटी देते हैं, किस तरह देखते हैं, हिस्ट्री को वो किस तरह देखते हैं, वो हिस्ट्री की शख्सियात को किस तरह देखते हैं, हमारे यहाँ इसको समझने की कोशिश नहीं की जा रही। कोई भी जो शख्सियत दुनिया में गुजरी है, जिसने दुनिया को कंट्रीब्यूशन किया है, आप बुद्धा को ले लें, आप यूनान के फिलासफर हैं उनको ले लें, मजहबी शख्सियात को ले लें, फिलासफर हैं उनको ले लें, सबका रिकॉर्ड वहां पाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। सवाल ये कि वो आका के बारे में वो क्यों ये अदब अदाब नहीं रखते हैं, हमें इसको समझना चाहिए। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने जो मजहब के नाम पे वहां इश्तियाल पैदा किया है, जो वहां इंसानों को हमले करते हैं, फिजिकल मारने को आते हैं, क्या ये चीज नफरत का उधर नहीं ले? जब हम अल्लाह अकबर कह के किसी की जान ले लेंगे तो आप मुझे बताएं, या उसका सर तन से जुदा करेंगे, तो वो ये समझेंगे कि ये तो जिन हस्तियों का ले रहे हैं शायद उन्हीं की तरफ से इनको ये मैसेज कन्वे हुआ है। हालांकि हमें दुनिया को ये बताना चाहिए कि हमारे आका जो हैं वो सर तन से जुदा करने वाले नहीं थे। हमारे आका तो वो थे जो एक जूज औरत जो है उन पे कूड़ा फेंकती थी, कुछ दिन नहीं फेंका, पूछा कि वो कहाँ है, माँ जी किधर हैं, पता चला बीमार है, तो जनाब अपने साथियों के साथ उसके घर चले गए, इयादत माँ जी करने आया हूँ। किसी के ऊपर कूड़ा फेंकना क्या इससे बड़ी तौहीन हो सकती है? अजीम शख्सियत को हमने ऐसे बना दिया है कि जैसे हमारे मौलवी साहबान बयान करते हैं कि आका ने कहा फलां की गर्दन काट दो, फलां ने मेरे खिलाफ
ये आका की हम इज्जत नहीं बना रहे, हम आका के बिलवास्ता समझें कि बायस बन रहे हैं उनके बारे में, उनकी शख्सियत को मसक करके पेश करने की। बड़ा ये नाजुक मामला है। ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन आका के बारे में हमें इस तरह का रवैया नहीं दुनिया के सामने पेश करना चाहिए कि जिससे उनके ऊपर हरफ आता हो। हमें वो पेश करना चाहिए जिसमें उनके रहमतुल्लाह अलमीन का तासर दुनिया पे वाज़ेह हो। अगर वो करेंगे और हम अपने एटीट्यूड को ठीक करेंगे, आप यकीन करें फ्रांस समेत अमेरिका, यूरोप में कहीं भी ये चीजें नहीं होगी। ये अमल का रद्द अमल हमने और बढ़ाया, उन्होंने और बढ़ा दिया। ये सिलसिला चलता रहेगा। आपको, मुझे और जितने भी मेरे बाकी दोस्त आप नौजवान हैं, ये एक फैक्ट मान लें कि आज का दौर आजादी इजहार का दौर है। आप उसको इग्नोर कर दें, आप चलें आगे चलें, आप बताएं, अपना मौक़िफ़ पेश करें, लोग खुद ही दुनिया नॉर्मल होती चली जाएगी। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा का ये आर्गुमेंट है कि पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें ये कैपेबिलिटी है ही नहीं, और उनका जो स्ट्रक्चर और डिजाइन और जिस तरह से वो जिस सिस्टम के अंदर जिस तरह काम करते हैं वो क्रिमिनल सिस्टम है। तो पाकिस्तान में वो कोई एकेडमिक और इकोनॉमिक चेंज ला ही नहीं सकती। इसी वजह से एस्टेब्लिशमेंट के पास एक खुला रास्ता है कि वो इन्वॉल्व भी होते हैं, उसमें कुछ लोग गलत हों तो वो अपने मकासद भी निकालते हैं। आपके ख्याल में फिर लेफ्ट की पॉलिटिक्स होनी चाहिए या फिर कौन सी पॉलिटिक्स है जो कि पाकिस्तान को, जिसको आवाम को इनकरेज करना चाहिए और एक एकेडमिक चेंज इन द माइंड्स ऑफ हमारे लोग लेके आनी चाहिए? क्या तब्दीली है जो कि पाकिस्तान को हकीकी तब्दीली चाहिए, बजाय इसके कि चंद हमें झूठे नारे या तब्दीली के खाली वादे मिल जाएं? रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है, पाकिस्तान में अगर ये कहा जाए कि पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं वो बिल्कुल जाहिल हैं और जड हैं, उनको कुछ पता नहीं, कोई काम नहीं कर सकती, प्रोपोगंडा जितना चाहें आप कर लें। पाकिस्तान के 70 साल दौर का अगर जायजा लें, ज्यादा टाइम जो है वो हमारे यहाँ जिन लोगों की हुकूमत रही है, आपके भी वो सामने है। वो पॉलिटिकल लोग तो गवर्नमेंट में होते हुए भी उनके मरूने मिन्नत रहे हैं और कमजोर और दब के रहे हैं। यही तो असल तनाजा इसी तो पैदा हुआ है। आज जो हम कह रहे हैं, ये नारा चल रहा है कि सिविलियन को उनका राइट मिलना चाहिए या अवाम की इज्जत एहतराम होना चाहिए, इसी वजह से है कि एक तो उन्होंने बराह रास्त जब चाह शब खून मारा और काबज हो गया, और आपने कि वो बड़े लंबे चौड़े ऐलानात किए गए, लेकिन जब वो दौर इख्तिताम को पहुंचा तो पता चला कि मुल्क जो है वो बजाय ऊपर जाने के नीचे आया है, बजाय इसके कि उसमें कोई इस्तेहकाम आता, तरक्की होती, बल्कि खराबी पैदा हुई। जब भी जमहूरी लोग आए हैं तो आप देखें कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तभी बेहतर हुआ है, तभी हमारे यहाँ खुशहाली तरक्की हो ना हो। ये एक बात हमको दुनिया से निराले नहीं है। पूरी दुनिया में एक चीज मान ली गई है और इसी पे चलना है कि यहाँ अवाम की मुल्क है, अवाम का है तो अवाम ही उसके मालिक हैं। अवाम के मालिकियत, या हम जब कहते हैं ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो उसका लाजमी तकाजा यह है कि जमहूरियत होनी चाहिए, अवाम की राय। पार्लियामेंट की अगर अजमत को मानते हैं, इस्लाम करते हैं, सारे ही मानते हैं, तो इसीलिए कि वो अवाम का मुंतखब अदारा है। लेकिन अगर इंतखाब में ही गड़बड़ कर दी जाए, जिनको अवाम चाहें उनकी बजाय रिजल्ट कोई और बना दिए जाए, तो ज़ाहिर है उससे मायूसी पैदा होगी और उसमें अदम इस्तेहकाम भी आएगा, एहतजाज भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो हम एक पैटर्न महज़ब कौमों की तरह क्यों नहीं अपना बनाते? भाई अवाम अगर गलत भी फैसला करेंगे ना, कोई बात नहीं, अवाम की राय आए, उनके नुमाइंदे आए, एक दफा अगले इलेक्शन में और बेहतरी आती चली जाएगी, तत्हीर होती चली जाएगी। हमने असल में पॉलिटिकल प्रोसेस को यहाँ चलने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से ये सारी चीजें पैदा हुई हैं। एक अफसर हो, कोई भी हो, उसको अपने मुफाद ज्यादा अजीज होंगे या आम लोगों के या वोटर के। ये जो बंदा मुंतखब होकर आता है उसकी मजबूरी होती है कि वो चाहे ना चाहे, उस जिनसे उसने वोट कल को भी मांगने हैं और जिनके वोटों को लेके वो सीट पे आया है, उसको अपने मोहल्ले के लोगों की बात सुननी पड़ेगी, उसको उनके मसाइल हल करने के लिए निकलना पड़ेगा। तो ये फर्क है जिसको समझा जाना चाहिए। हम लोग ये समझ लेते हैं कि पता नहीं बड़े काबिल लोग बैठ गए हैं, पता नहीं क्या कर देंगे, ये बस ये तो अवामी जो नुमाइंदे हैं ये तो काबिल नहीं है, इनके अंदर वो सलाहियतें नहीं है। ये बिल्कुल सोच गलत है। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो हमें अफराद को, अपने कौम को, अपने अवाम को इज्जत देनी होगी। उसी से जो लोग आएंगे वो मुल्क के लिए ज्यादा बेहतर कर सकेंगे। भले नहीं भी, कम भी करेंगे तो वक्त के साथ बेहतरी आती चली जाएगी। जहाँ जमहूरी प्रोसेस नहीं चलेगा तो यही कुछ होगा जो 70 साल में होता है। जी अफसाल साहब, नाइस टू सी यू एंड थैंक यू फॉर कंडक्टिंग सेशन फॉर आवर स्टूडेंट्स। कॉलम लिखने के लिए जरूरी चीजें क्या हैं और कॉलम लिखने के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स या कौन से स्टाइल अगर अडॉप्ट किए जाए तो एक अच्छा कॉलम आप लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है? इन जनरल क्या जरूरी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को चाहिए एक कॉलमनिस्ट बनने के लिए? थैंक यू। पहले भी ये अर्ज किया कि असल पहले सबसे बड़ी बात है कि आप स्टूडेंट जो भी लिखने लगा है, कलम उठाया है, वो सबसे पहले ये सोचे कि उस कमांड किस शोबे में है, किस चीज में है, जिसमें नॉलेज है, जिसमें ग्रिप है, उसको वो अपना मौजू बनाए सबसे पहले। और दूसरी बात यह है
کہ زبان پہ بھی دسترس ہونا چاہیے. اگر وہ انگریزی میں لکھ رہا ہے تو ظاہر ہے انگریزی کو بہتر جانتا ہو, اگر اردو میں لکھ رہا ہے تو اردو میں. زبان اور زبان کی چاشنی یہ بھی اہمیت رکھتے ہیں, لیکن ان سے بڑھ کے جو چیز رکھتی ہے وہ اس موضوع پہ گرپ ہے. دیکھیں ہمارے ہاں فن طبع کے طور پہ بھی لکھتے ہیں. آپ کے اسٹوڈنٹس کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جب بھی لکھنے لگیں تو آپ کا کچھ ٹارگٹ بھی ہونا چاہیے. آپ میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے. آپ اس کو ٹارگٹ یہ کریں کہ جس میں لوگوں کا بھلا ہوتا ہو, عوام کا, عام انسانوں کا بھلا ہوتا ہو. اس مقصد کو رکھ کے سامنے پھر آپ قلم اٹھائیں اور نالج کے ساتھ اٹھائیں اور زبان کو سمجھتے ہوئے اٹھائیں, تو یہ آپ کالم لکھیں گے. ایک سیکوینس ہوتا ہے, ایک اسلوب ہوتا ہے کہ بات کہاں سے میں نے شروع کرنی ہے, کہاں اٹھان لانی ہے, کہاں ختم کرنا ہے. تو یہ سارے پہلو جو ہیں یہ وقت کے ساتھ بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ لکھنے لگتا ہے 2-4 کالم لکھے گا تو خود ہی اس کے اندر اتنا وہ اس کو سکھا دے گا, کالم نکھار آتا جائے گا. پہلے دن کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کالر ہی بن کے آئے. لہذا جو بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ بچوں آپ محنت کریں, کوشش کریں, لگن کے ساتھ لکھیں. کوئی کمی ہوگی تو وہ وقت کے ساتھ امپروو ہوتی چلی جائے گی. جی آپ نے درست فرمایا بالکل کہ لکھنا ایک آرٹ ہے اور جتنا لکھا جائے گا اتنی اس میں امپروومنٹ آئے گی. یہ فرما دیجیے کہ اسٹوڈنٹس کو, بگنرز کو کیا چیزیں پڑھنی چاہیے, کتنا پڑھنا چاہیے, اور کون سی ایسی بکس یا رائٹرز ہیں جن کا وہ انتخاب کریں. اور آبویسلی جیسے کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا کہ پڑھنا ہے, جو مطالعہ ہے وہ لکھنے کے لیے ایک ایندھن کا کام کرتی ہے جس سے اس کی گاڑی وہ چلتی ہے ایک رائٹر کی. روٹین کیا ہونی چاہیے اسٹوڈنٹس کی مطالعہ کے حوالے سے؟ دیکھیں 3 باتیں اس میں کہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو کوئی بھی ہے اس کو سب سے پہلے تو اپنے جس شعبے کا ہے اس سب سے زیادہ دھیان اس پہ دینا چاہیے. ایک بچہ پولیٹیکل سائنس کا ہے اس کو اس پہ, ایک بچہ جو ہے وہ انٹرنیشنل افیئر کا ہے. یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو اس کا سبجیکٹ ہے سب سے پہلے وہ اس کا انتخاب کرے, اس پہ اس کو دسترس ہونی چاہیے. لیکن یہ کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی آج کے دور میں کمپٹیشن کا دور ہے, ہر طرف دیکھیں ٹیلنٹ ہے, کوالٹیز ہیں, لوگ محنت کر رہے ہیں. ہمارے بچوں کو چاہیے کہ وہ دوسری بات جنرل نالج, اپنے شعبے کا تو وہ رکھتا ہے نالج, اور لیکن اس کو اگر جنرل نالج نہیں ہے تو وہ اس میں بھی پھر کئی چیزیں گیپ چھوڑ جائے گا. لہذا اس کو جنرل نالج دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے, ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, کون کہاں کھڑا ہے, کس کی کیا حیثیت ہے, مذہب کیا ہے, باقی مذاہب کیا ہیں, اس کے مطالعے میں وسعت آنی چاہیے. ادب کی بھی تھوڑی سی اگر دلچسپی ہو تو وہ تحریر میں ایک خوبی یا خوبصورتی پیدا کر دیتی ہے. وہی بات اگر اچھے پیرائے میں کی جائے تو اس کی چاشنی بڑھ جائے گی, لوگ پڑھنے والے تحریر کو پورا پڑھیں گے. اگر وہ بے ہنگم ہو, ادبی چاشنی نہیں ہوگی تو وہ اس میں ذرا لطافت کم ہو جائے گی. اپنے نالج کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں کے اوپر بھی کچھ, یہ نہیں کہتا کہ ہر چیز میں وہ بڑا علامہ بنے یا اس کے اوپر وہ کمانڈ ہو, لیکن نالج اس کو ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ادبی اور سماجی جو ہماری حقیقتیں ہیں اس سے بھی آگاہ اس کو ہونا چاہیے. صاحب نے آپ سے کوشچن کیا تھا کہ کوئی خلا جب رہتی ہے تو تب اسٹیبلشمنٹ آتی ہے گورنمنٹ میں. سر اگر آپ دیکھیں تو یو ایس میں بھی یو ایس ملٹری اور پینٹاگون ان کو مانیٹر کر رہا ہے وہاں کی حکومت کا. تو ہماری حکومت میں ایسا کیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ میثاق جمہوریت تو یہاں پر اسٹیبلشمنٹ انوالو نہ ہو. اگر اسٹیبلشمنٹ انوالو نہ ہو تو حسین حقانی جیسے لوگوں کو وزارتیں مل جاتی ہیں. سر اس پہ تھوڑی سی نظر ڈال لیجئے گا کہ کیا پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ایک مشکل چیز ہوتی ہے, پولیٹیکل لوگ تو بدلتے رہتے ہیں, اس کی ضرورت کیوں نہیں ہے, بالکل ہے. پینٹاگون کی آپ نے بات کی ہے, پینٹاگون بھی واچ کرتی ہے, نو ڈاؤٹ. ایک بات ہے جو ہمیں ریالٹی کے طور پہ دیکھنی چاہیے, پینٹاگون کا کہاں ایسا اثر رسوخ ہے. اگر وہ کانگریس کے مقابلے پہ کھڑی ہو جائے تو پینٹاگون ابھی جو کچھ ہوا ہے وہاں امریکہ کی ہسٹری ہے, 250 سال ہونے کو آ رہے ہیں, وہاں مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ آپ دیکھیں ڈیموکریسی چل رہی ہے. کیا کبھی آپ نے سنا کہ وہاں کے کسی آرمی چیف نے وہاں جا کے جی ٹرمپ سے نہل کون آئے گا, کہ ٹرمپ کے اوپر شب خون ماریں گے, قبضہ کر لیں گے, کیونکہ وہ بڑی بے ہنگم گفتگو کرتا ہے یا اس کی پالیسیاں بڑی غلط ہیں. آپ مجھے بتائیں, لوگوں کو پوچھیں کہ امریکہ جیسی دنیا کی سب سے بڑی فورس ہے ان کے پاس, اس کے آرمی چیف کا نام کیا ہے, لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا. اور لوگوں سے پوچھیں انڈیا کے آرمی چیف کا نام کیا ہے, لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا. آخر ہمارے ہاں ہم انوکھے کیوں ہیں, ہمارا سماج کیوں انوکھا ہے, یا ہمارے اندر یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کیوں اتنی انوکھی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سپر گورنمنٹ اوپر ہوتی ہے. یعنی پولیٹیکل لوگ تو بیچارے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, نہل سے ہیں. وہ جو اوپر وہ جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ بہت قابل لوگ ہیں.
यार ये वतीरा खत्म होना चाहिए। कौमें इस तरह नहीं बनती हैं, कौमों को चलने, लोगों को चलने दें, अवाम के नुमाइंदों को आने दें। ये चीजें अफाम तफहीम खुद ही हो जाता है। जो एस्टेब्लिशमेंट है, जहां गवर्नमेंट होगी, ड्रामा भी है, मीडिया भी स्ट्रांग है, एस्टेब्लिशमेंट से बढ़ के मीडिया खुद नाकद है। अगर कोई नहल पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है तो वो इस काबिल नहीं रहती कि अगली दफा पेश हो सके। आप देखिएगा, अगर जमहूरियत चलने दिया गया तो ये चीजें वक्त के साथ खुद ही, तो हमें रियलिटीज को भांप के, देख के हर चीज का जायजा लेना चाहिए। वन साइडेड नहीं कह देना चाहिए फलां बिल्कुल ऐसे हैं। जिसका जो मुकाम है उसको उस मुकाम पे रहना चाहिए। ये असूली बात है। आइन की हुक्मरानी हम कहते हैं, कानून और आइन की। तो फिर आइन ने हर चीज का लिखा हुआ है कि आइन में कौन सी चीज मौजूद नहीं है कि जिसका जो रोल है वो अदा करे, जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है। अगर हम ये कहें नहीं जी आइन में जो भी है, नहीं जी वज़ीर आज़म चूंकि मुंतखब होता है लिहाजा वो उसको चीर फाड़ कर दे जो मर्जी, बिल्कुल गलत है। जिसका जो हक है, जो राइट है, जो काम है, उसको उसमें रहना चाहिए। दूसरों में खाम का इंटरफेरेंस करना ये गलत है। हमें आइन को बुनियाद बनाना चाहिए और पार्लियामेंट जो है वो आइन की भी माँ होती है, उसका एहतराम होना चाहिए। अदारों के एहतराम की जब बात की जाती है तो हमें सबसे पहले जो अदारा हमारी कौम की अमंगों का तर्जमान है, जिसमें अवाम की जो चुनाव के साथ अगर वो आए सही तरीके से, तो असल चीज तो पार्लियामेंट है, उसका पहला एहतराम है, बाकी सब एहतराम उसके बाद है। चले सर, मैं सिर्फ आपसे 2 क्वेश्चंस करना चाहूँगा। हमारे मीडिया के अंदर हों या पॉलिटिकल साइंस के इंटरनेशनल रिलेशंस कहीं भी, जब लोग पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 2 या 3 ऐसे वाक़यात होते हैं जिन पे उन्हें बहुत ज़्यादा शक रहता है और हमेशा वो ये सोचते हैं कि कुछ ऐसी बैरूनी क़ुव्वतें हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम को चलने नहीं देती। इसमें सबसे पहले लियाकत अली खान साहब, जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, उनका कत्ल था। उसमें के बाद भुट्टो साहब का कत्ल था, उसके बाद ज़ियाउल हक का कत्ल था, और जिनाह साहब वाला, उसको भी कई लोग कह देते हैं कि वो भी एक मर्डर था। उसके अलावा बेनज़ीर वाला। तो आपके ख़्याल में ये सब कौन करता है? ये हमेशा अमेरिका या तालिबान होते हैं, या कई दफ़ा हम ही में से कोई लोग उठते हैं जो कि पाकिस्तान का जो एक डायरेक्शन होती है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं? कई माएँ आप कहती हैं मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, बस वो जो हमसायों के बच्चे हैं ना वो बड़े गलीज और गंदे हैं, वो मेरे बच्चों को खराब कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। फिलहाल जो है ना रिश्तेदारों के बच्चे हैं वो बड़े, वो माँ की ममता काबिल एहतराम है, अपनी जगह है, लेकिन हमें रियलिटी पे आना चाहिए। सच्चाई तो ये है, मेरी तो अब जिंदगी भर की जो स्टडी है वो ये है कि हमारा दुनिया में कोई भी दुश्मन नहीं है। अगर सच मुझसे पूछे तो हम खुद अपने दुश्मन हैं। सारी तबाहियां फेरते हैं, जो जहां है वहां नहीं रहता है, दूसरे में इंटरफेरेंस करता है। जिन्ना साहब के बाद जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन को बनाया गया था गवर्नर जनरल, वो उसके बाद हालात बदले तो उनको वज़ीर आज़म भी बनाया गया। तो उनसे पूछा गया, किसी ने पूछा कि ख्वाजा साहब आप बहसीयत गवर्नर जनरल ज्यादा ताकतवर थे या कि बहसीयत वज़ीर आज़म, क्योंकि आप दोनों को आपने एंजॉय किया है। तो उनका जवाब बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा जब मैं गवर्नर जनरल था तो वज़ीर आज़म ज्यादा ताकतवर था और जब मैं वज़ीर आज़म था तो गवर्नर जनरल ज्यादा ताकतवर था। देखिए सीट वही होती है, लेकिन हम अपनी लिमिट में नहीं रहते। जिसका जो अख्तियार है, जिसकी जो अथॉरिटी है, बात अब की नहीं कर रहा, तब की कर रहा हूँ जब जिन्ना साहब फौत हुए हैं। कैबिनेट जो होती है, इंचार्ज या उसका हेड जो है वज़ीर आज़म होता है, वही उसको सिलेक्ट करता है और वही उनके इजलासों को प्रिजाइड करता है। मुझे बताएं, जब लियाकत अली बन गए थे तो किसी और को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था जो बनता है। अब देखिए बुनियादें जब आप सही इस्तेमाल करेंगे तो ऊपर बिल्डिंग भी वैसी इस्तेमाल होगी। ये चीजें हमें शुरू में ही कुछ ऐसी आई हैं जिसकी वजह से इसमें हम अदम इस्तेहकाम का शिकार हुए हैं। भटका हुआ बंदा कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाए, इस्लाह का दिन जो है ना वो कहीं भी खत्म नहीं होता। अब ये नहीं है कि माजी में हमसे गलतियां हुई हैं, हमसे कुताहियां हुई हैं या हमारे बड़ों ने ये की हैं, हम उनको जवाब बना के कहें जी अब कुछ नहीं हो सकता। हर चीज हो सकती है। आज ये कौम ये अहद कर ले, हमारे अदारे, हमारे पॉलिटिकल लोग, हमारी क़यादत, सब लोग ये इस बात पे, हमारा मीडिया इस चीज को उठाए कि भाई पिछली कुताहियां छोड़ें, आइंदा नहीं करनी। जिसका जो राइट है उसको वो माना जाए, जो जिसका हक बनता है, जिसकी जो अथॉरिटी है उसको रहना चाहिए। हमें अपनी लिमिट में रहना चाहिए, जहाँ आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। आइन के प्रिवेल करता है, तमाम कवानीन का मंबा जो है वो आइन है। अच्छा, उसके बाद पार्लियामेंट है, उसकी बालादस्ती होनी चाहिए। जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जुडिशरी का ये कोई काम नहीं है कि वो किसी के इशारे पे फैसले करे या वो जानबदारी दिखाए। सारी चीजें हैं जो मीडिया के जरिए, आप माशाल्लाह नौनहाल हैं, आप हमारी कौम की उम्मीदें हैं नौजवान। आपने कल को आके एडिटर बनना है, आपने मुख्तलिफ अदारों में जाना है, चैनल चलाने हैं, तो आप लोगों को ये बात, कुछ असूली चीजें पहले से डिसाइडेड होनी चाहिए कि भाई जो मुल्क की जो कदरें हैं, आला कदरें, वो क्या हैं
اور उसके मुताबिक हमने अपनी कौम को चलाना है, उसके लिए हमने आवाज उठानी है। बेईमानी करता है या जो वायलेट करता है कानून को या अपनी हदूद से मावरा जाता है, तो आपको चाहिए कि आपके अंदर एक मीटर ऐसा हो जो आपको कहे कि यार ये गलत कर रहा है, आप उस पर लिखें भी, बोलें भी। अगर ये चीजें कौम में अफराद से बढ़ के कौम में चली जाएंगी तो हमारी ततहीर होती चली जाएगी। लिहाजा बेहतर ये है एक ज़ाब्ते को हम मान लें और उसके मुताबिक चलें। जी सर। और सर आखिरी सवाल सर ये है कि अभी जो हमारा पाकिस्तानी मीडिया है, इसमें आपके ख्याल में क्या चीज़ें गलत हैं, जहाँ पे लगता कभी आपको हो कि ये नॉन इश्यूज पे बात करते हैं या ज़्यादा कमर्शियलाइजेशन वगैरह की तरफ जाते हैं, और आपके ख्याल में इसमें क्या चेंजेस आनी चाहिए, और जो नए आने वाले जर्नलिस्ट हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? बहुत अच्छी बात है जी। हमारे मीडिया में बहुत ज्यादा मुझे गिले हैं, शिकायतें हैं। सबसे पहली बात, इसमें पार्टीबाजी बहुत ही ज्यादा है। मेरा लिंक फलां पार्टी के साथ है, मैंने उसको सपोर्ट करना है, फलां की मैंने तुला वो मैंने मुखालफत करनी है। फिर ये मफादात के भी कह लें, मसले मसाइल भी कह लें, प्रेशर भी कह लें, हमारे मीडिया में वो क्लियरेंस नहीं है जो होनी चाहिए। देखिए हमारी कौम, इस वक्त कहा जाता है जी दुनिया में शायद ही कोई कौम इतनी कंफ्यूज होगी जितनी हम पाकिस्तानी हैं। हर मसले में उलझाव हैं, हर मसले में इख्तलाफ हैं, कोई किसी के साथ कोई चीज नहीं मिलती। तो उसकी बेस जो है ना वो कहाँ से शुरू हुई है? अपने जो हमारे मुफक्रीन हैं उनकी थॉट भी देखें, आपको वहां भी कंफ्यूजन नजर आएगी। क्लियर कौमें थॉट तब होते हैं जब कौम के सामने पेश करने वाले खुद क्लियर माइंड हों। तो मीडिया की ये जिम्मेदारी है वो कुछ असूल ज़ाब्ते जो तय हैं उनको उनके मुताबिकत में चले कि भाई बात ये है कि यहाँ इक़्तिदार के वाली वारिस क्या तगड़े लोग हैं, ताकत जिसकी लाठी उसकी भैंस है, क्या ये असूल लागू होना चाहिए? ये कि अकल बड़ी या भैंस? तो हमें अकल को अहमियत देनी चाहिए या कि लठ को ताकत को? ये चीजें कुछ डिसाइडेड होनी चाहिए, हम उन पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हमें हर जगह कहना चाहिए जो बेअसूली करता है उसकी मजम्मत होनी चाहिए, जिसके साथ ज्यादती होती है हमें उसके साथ खड़े होनी चाहिए। उसका कोई भी मजहब हो, उसका कोई भी नजरिया, कोई भी पार्टी हो, हमें इसको देखे बगैर मजलूम का साथ देना चाहिए। ये चीजें अगर आ जाएंगी, मीडिया इन चीजों पे कारबंद हो जाएगा, ततहीर का अमल शुरू हो जाएगा और बेहतरी आती चली जाएगी। जी बिल्कुल, उसूली से जमहूरियत और उसूली सहाफत होनी चाहिए, ये अफजाल रेहान साहब का नए आने वाले जर्नलिस्ट के लिए पैगाम है। और इसी के साथ हम सेशन को एंड करेंगे। अफजाल रेहान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।